ٹنڈوالا یار میں تیز رفتار ڈمپر نے موٹر سائیکل سواروں کو ٹکر مار دی۔ ایک شخص موقع پر جاں بحق جبکہ 2 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ جاں بحق اور زخمی ہونے والوں کا تعلق گاؤں شیر خان نوکر سے ہے۔ زخمیوں کو تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اوکاڑا شہر اور گرد و نواح میں وارداتوں کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ تھانہ صدر اور تھانہ راوی کی حدود میں ڈکیتی کی وارداتیں۔ ڈاکوؤں نے اسلحے کے زور پر یونیورسٹی کے پروفیسر راشد کو لوٹ لیا۔ دوسری واردات کے قریب ہوئی۔ 3 ڈاکوؤں نے اسلحے کے زور پر کار سواروں علی حسنین وغیرہ کو لوٹ لیا۔ بڑھتی وارداتوں پر شہریوں میں تشویش کا اظہار۔ اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ ڈی پی او چنیوٹ عبداللہ احمد کی ہدایت پر ضلع بھر میں سنیپ چیکنگ کے دوران مشکوک گاڑیوں اور افراد کی چیکنگ کی گئی۔ ای پوسٹ ایپ کے ذریعے 500 سے زائد گاڑیوں اور افراد کو چیک کیا گیا۔ کریک ڈاؤن کے دوران مختلف جرائم میں ملوث 8 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ 7 منشیات فروشوں اور ناجائز اسلحہ برآمد ہونے پر 1 ملزم کو گرفتار کیا گیا۔ قبضے سے 2 کلو سے زائد چرس اور کلاشنکوف برآمد۔ مزید تفتیش کا عمل جاری ہے۔ ڈی پی او خانیوال کی سربراہی میں صدر سرکل پولیس کی ڈکیت گینگز کے خلاف کارروائیاں جاری۔ پولیس نے کارروائی کے دوران 7 ڈکیت گینگ کے 16 رکن گرفتار کر لیے۔ 59,43,000 کا مالی مسروقہ برآمد ہوا۔ گرفتار گینگ سے 31 موٹر سائیکلز، 2 رکشے، 5 موبائل فون اور 10,30,300 روپے کی نقدی برآمد۔ ملزمان سے وارداتوں میں استعمال ہونے والا ناجائز اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر خانیوال وسیم حامد سندھو نے ویسٹ مینجمنٹ کمیٹی اجلاس میں قوانین پر عمل نہ کرنے والے ہسپتالوں کباڑیوں کے خلاف کارروائی کی ہدایت کر دی۔ اجلاس میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر انوائرنمنٹ سرفراز انجم نے ڈپٹی کمشنر کو کارروائیوں بارے بریفنگ دی۔ ڈپٹی کمشنر خانیوال نے محکمہ صحت اور ماحولیات ہاسپٹل ویسٹ مینجمنٹ رولز کو عمل درآمد کو یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ کچا کھو کے علاقے میں ہسپتالوں کا ویسٹ ملنے پر کباڑ خانہ سیل کر دیا گیا۔ ڈسٹرکٹ جیل قصور سے بتوقی پیشی پر آئے خطرناک ملزم کے فرار ہونے کا معاملہ۔ ملزم رشید عرف شیدی پولیس اہلکاروں کی غفلت کے باعث فرار ہو گیا۔ رشید عرف رشیدی ڈاکو سنگین مقدمات میں ملوث۔ تھانہ سٹی میں غفلت کے مرتکب پولیس اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج۔ ترجمان قصور پولیس کے مطابق ڈی پی او نے فرار ملزم کی گرفتاری کے لیے اسپیشل ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں۔ سرائے عالمگیر میں گھریلو ناچاکی پر خاوند نے فائرنگ کر کے بیوی کو شدید زخمی کر دیا۔ خاتون کی شناخت مہوش کے نام سے ہوئی۔ تشویشناک حالت میں ڈی ایچ کیو ہسپتال جہلم ریفر کر دیا گیا۔ فائرنگ کرنے کے بعد خاوند موقع سے فرار ہو گیا۔ پولیس جائے وقوع پر پہنچ گئی۔ ملزم عامر کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ اور آئی جی پنجاب کے واضح احکامات کے باوجود قصور کی حدود میں پتنگ بازی عروج پر۔ ویڈیوز میں واضح طور پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ آسمان پر رنگ برنگی پتنگیں لہرا رہی ہیں۔ پتنگ بازی سے پہلے بھی ننھے طالب علم سمیت متعدد افراد زخمی ہو چکے۔ بعض زخمیوں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے ہیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ ایس ایچ او اے ڈویژن قصور آصف جاوید کی نااہلی کی وجہ کوئی بڑا سانحہ ہو سکتا ہے۔ شہریوں نے ڈی پی او قصور، آر ٹی او شیخوپورہ ریجن بابر سرفراز الفا اور آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔
अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का बकायदा आगाज करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बुलेटिन का बकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको खबर दें उमरकोट से, जहां CIA पुलिस का गोदाम पर छापा है। लाखों रुपए मालियत का गुटखा बनाने वाला सामान और खाम माल बरामद कर लिया गया। कार्रवाई इंचार्ज इंस्पेक्टर आतिफ शाह ने की। मफरूर मुल्जिमान राम मली, हीरो मली और सूरज मली के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब ओकाड़ा शहर और गिरदनवा में डकैतियों की वारदातों का सिलसिला न थम सका। थाना सदर और थाना रावी की हदूद में डकैती की वारदातें, डाकुओं ने असलहे के जोर पर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर राशिद को लूट लिया। दूसरी वारदात भी इस हवाले से करीब तरीन इलाके में हुई। 3 डाकुओं ने असलहे के जोर पर कार सवारों अली हसनैन वगैरह को लूट लिया। बढ़ती वारदातों पर शहरियों में तशवीश का इजहार है। आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। भरिया रोड में सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के ताउन से चलने वाले अलनूर पब्लिक स्कूल भरिया रोड का इफ्तिताह कर दिया कि इफ्तिताह सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर अब्दुल कबीर कासी, डिस्ट्रिक्ट हेड महबूब मक्सी और मुहिब अली ने किया। रहनुमाओं का कहना था कि सिंध एजुकेशन फाउंडेशन हुकूमत सिंध के ताउन से चलने वाला एक इदारा है जिसमें लाखों बच्चे मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं। हम बच्चों को मयारी तालीम और सरगर्मी का मंसूबा फराहम करते हैं। हवेली कहोटा में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में चौधरी मंसूर के घर पर महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया, जिसमें उलमाए कराम सनाख्वान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसीर तादाद ने शिरकत की। मशहूर नाथवा हाफिज एजाज अहमद शाइन, अलामा मौलाना शौकत रिजवी, मुफ्ती नसीर, मुफ्ती सादिक रिजवी, सदर अंजुमन ताजरान चौधरी जमील ने शिरकत की। नाज़रीन, एबटाबाद में भी जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में अजीम शान जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। उलमाए कराम सनाख्वान मुस्तफ़ा और आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसीर तादाद ने शिरकत की। इसी पर रिपोर्ट करेंगे उबैदुर रहमान सुलेमानी। एबटवा जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम पीर आफ्तोरी शरीफ शाह मोहम्मद कमाल काज़मी की ज़ेर सदारत, जबकि मनाज़िर इस्लाम मुफ्ती नज़ीर अहमद कुरैशी की ज़ेर निगरानी था। उलमाए कराम, शाइख़ आज़म और आशिकान मुस्तफ़ा की कसीर तादाद ने शिरकत की और खिताबात किए। मुकर्रिरीन का कहना था कि बीवी पाक आमना फरमाती हैं, मैं जिधर से गुजरती दरख्त मुझे सलाम करते, पत्थर मुझे सलाम करते। बाबा दरख्त और पत्थर मेरे नबी की माँ को सलाम करें तो हम उम्मती अपने मुस्तफा को सलाम न करें यार। खुदा की इज्जत की कसम, जिधर जाओ कायनात के चारों तरफ, सिर्फ जमीनों में नहीं, अल्लाह की इज्जत की कसम, आसमानों पे चले जाओ, वहां पर भी चर्चा मेरे मोहम्मद मुस्तफा का हो रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी, नमाजें भी हैं, रोजे भी हैं, सदकात व खैरात भी हैं, तरह तरह की नेकियां उनके पास मौजूद हैं, लेकिन बरगाह मुस्तफ़ा में आते हैं, कहते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत कब कायम होगी। जब ये सवाल करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं, कहते हैं सहाबी सवाल करने वाले बता तैयारी क्या कर रखी है। सहाबा का वही अकीदा, वही हमारा अकीदा। जवाब देते हैं हालांकि उनके पास तरह तरह की नेकियां मौजूद थी, कहा मेरे पास कोई भी नेकी नहीं है, फकत आप जिस मकसद के लिए यहाँ पर आए, नबी की मोहब्बत में आए। कहते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह के साथ प्यार करता हूँ और अल्लाह के रसूल के साथ प्यार करता हूँ, यही चीज है। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का मकसद उम्मत की रहनुमाई और इश्क़ सहाबा व आले बैत और इश्क़ मुस्तफ़ा की शमा को रोशन करना है।
नाज़रीन अफसोसनाक खबर दें आपको कि टंडोवाला यार में तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मार दी। एक शख्स मौका पर जाँ भाग जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जाँ भाग और जख्मी होने वालों का ताल्लुक गांव शेर खान नौकर से है। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खबर ये है कि लकी मरवत में शाह वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के साबिक चेयरमैन के बेटे शाकिरुल्लाह और एसटी इरिगेशन ने सुलेमान खेल माइंस का दौरा किया। माइंस में जारी काम का जायजा लिया। मारूफ समाजी शख्सियत शाकिरुल्लाह ने कहा कि इलाके की खिदमत करना उनकी अपने शहीद वालिद से विरसे में मिला है जो जिंदगी की आखिरी सांस तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि इस माइंस की सफाई से सारा इलाका मुस्तफीद होगा। बास नाम निहाज सियासतदान और फलाही तंजीमों के नुमाइंदे बनकर आवाम को गुमराह कर रहे हैं। डीपीओ चिन्योट अब्दुल्ला अहमद की हिदायत पर जिला भर में स्नैप चेकिंग के दौरान मशकूक गाड़ियों और अफराद की चेकिंग की गई। ई पोस्ट ऐप के जरिए 500 से ज्यादा गाड़ियों और अफराद को चेक किया गया। क्रैकडाउन के दौरान मुख्तलिफ जराइम में मुलविस 8 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। 7 मनशियात फरोशों और नाजायज असलहा बरामद होने पर एक मुल्जिम को गिरफ्तार किया गया। नाज़रीन खबर यह है कि नए तैनात होने वाले एएसपी तैमूर खान ने सरकर रेनाला खुर्द का चार्ज संभाल लिया है। कहा कि रेनाला खुर्द में अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। मनशियात के खात्मे के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। एएसपी तैमूर खान से प्रेस क्लब के वफ्द की भी मुलाकात हुई। अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। कहा अमन अमान की सूरत हाल और मनशियात के खात्मे के लिए पंजाब पुलिस के साथ मुकम्मल ताउन करें। नाज़रीन आपको बताएं कि नारंग मंडी की यूनियन काउंसिल हिजड़ की मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत चौधरी बाबर इफ्तिखार भट्टी ने अपने इलाके को जराइम से पाक करने की ठान ली है। मौससी ने इलाका की मुशावरत से अमन कमेटी की बुनियाद रखकर पूरे अज़्म से क़याम अमन मिशन का आगाज कर दिया। इसे पर रिपोर्ट करेंगे कमर गुलाटी। नारमरी के इलाका हच्चर कोट अब्दुल्ला की नामवर सियासी समाजी शख्सियत और अमन के दाई चौधरी बाबर इफ्तिखार भट्टी ने अपने इलाकों को जराइम से पाक करने के लिए कमर कस ली और अमन कमेटी की बुनियाद रख ली, जिसका मकसद इलाका में मनशियात और दीगर जराइम का मुकम्मल खात्मा और इलाका में भाईचारे की फ़ज़ा को फ़रोग़ देना है। आइए जानते हैं कोहिनूर चैनल से चौधरी बाबर इफ्तिखार भट्टी की बातचीत। जी, सियासत को साइड पे रखते हुए सारे धड़े हम एक पेज पे आ गए हैं और सारे हम भाई बंदी के तौर पे हमने सोचा है कि हम एक दूसरे की इज़्ज़त को अपनी इज़्ज़त समझें। गांव में मनशियात फरोशी, चोरियां, डकैतियां, शराब नोशी, कोई किसी किस्म का कोई बुरा फेल अगर है तो हमने ये प्लान किया है कि हम अपने तौर पे हक़ाइक़ के ऊपर चलते हुए हम अपनी पुलिस की मदद करते हुए हम कानून को हाथ में भी नहीं लेंगे, लेकिन अपनी पुलिस को मदद करते हुए हम वो गंदे बंदे की सपोर्ट इस तरह करेंगे कि वो कैफरे किरदार तक पहुँचे। और कोई भी हमारी जो अमन कमेटी हमने बनाई है, ये हमारी अमन कमेटी भी है, ये हमारी मिसालती कमेटी भी है और कोशिश हमने यही करनी है कि हमारे छोटे छोटे जो मामला हैं, झगड़े होते हैं, वो हम थाने तक ना जाने दिया करें ताकि थाने का कीमती वक्त छोटे छोटे मामला में ज़ाया ना हो, वो बड़े काम करें और वो हम काम सॉर्ट आउट करके हल करके अपनी पुलिस को बताया करें कि इसका हमने ये हल कर दिया और आपका ये वक्त बचाया और हमने गांव के लोगों को जलील होने से बचाया, लड़ने से बचाया। और उसमें इंशाल्लाह बाकायदा हल्फन इकरार करते हुए सारे मेंबर्स ने ये वादा किया है कि हम बुरे बंदे की मदद नहीं करेंगे, हम अपने माहौल, गांव का माहौल खूबसूरत बनाएंगे या हम दीन का जो पासदारी है उसके रास्ते पर चलते हुए लोगों को भी दीन पे आने की तरगीब देंगे। वो दीन के ऊपर चल कर ही कामयाबी है। और हमारी जो पुलिस है, बहुत बड़ा इलाका है थाना नारंग का, उनके अकेले बस की बात नहीं है और उसमें हम सब बतौर मुआशरा के रुकन होते हुए, अच्छे शहरी पाकिस्तान के होते हुए, हमारा कौमी फरीज़ा भी है और हम समझते हैं कि इस इलाके में हच्चड़ गाँव का एक अपना मुकाम है। हमारे गाँव में मेंबर नेशनल असम्बली भी बने हैं ब्रिगेडियर साहब, और ब्रिगेडियर साहब हमारे बुजुर्ग भी हैं
اور یہ جو باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں یہ ہم بریگیڈیئر صاحب کے نالج میں لاتے ہوئے بھی ہم کر رہے ہیں اور ان کی بھی مکمل سپورٹ ہمیں حاصل ہے. لیکن ہم نے اس کو سیاست ہر بندے کو بولا ہے کہ سیاست نہیں کرنی, عبادت کرنی ہے, اپنے گاؤں کا ماحول ٹھیک کرنا. اور اس میں ہم انشاءاللہ پولیس سے بھی یہ توقع کرتے ہیں کہ ہم نے جو امن کمیٹی اور مصالحتی کمیٹی بنائی ہے ہم بھی کام ان کے شانہ بہ شانہ کریں گے اور میرٹ پہ چلتے ہوئے ہم ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں گے. اور جو مجرم لوگ ہیں وہ ان کو مکمل اس طرح کی ہماری سپورٹ ہوگی کہ وہ مکمل قید بھی برداشت کریں, جرمانہ. ڈی پی او خانیوال کی سربراہی میں صدر سرکل پولیس کی ٹکٹ گینگز کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں. پولیس نے کارروائی کے دوران 7 ٹکٹ گینگز کے 16 رکن گرفتار کر لیے. 59,43,000 کا مال مسروقہ برآمد ہوا. گرفتار گینگ سے 31 موٹر سائیکلز, 2 رکشے, 5 موبائل فون اور 10,30,300 روپے کی نقدی برآمد. ملزمان سے وارداتوں میں استعمال ہونے والا ناجائز اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا. وہیں دوسری جانب ڈپٹی کمشنر خانیوال وسیم حامد سندھو نے ویسٹ مینجمنٹ کمیٹی اجلاس میں قوانین پر عمل نہ کرنے والے ہسپتالوں کباڑیوں کے خلاف کارروائی کی ہدایت کر دی ہے. اجلاس میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر انوائرنمنٹ سرفراز انجم نے ڈپٹی کمشنر کو کارروائیوں بارے بریفنگ دی. اجلاس میں محکمہ صحت, ماحولیات, لائف اسٹاک افسران, پرائیویٹ انسٹریئر کمپنی پی ایم اے اور اسپیشل نمائندگان نے شرکت کی. ڈپٹی کمشنر خانیوال وسیم حامد سندھو نے محکمہ صحت اور ماحولیات, ہاسپٹل, ویسٹ مینجمنٹ رولز کو عمل درآمد کو یقینی بنانے کی ہدایت کر دی. اوکاڑا میں تھانہ شاہپور پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف قانونی کارروائیاں جاری ہیں. ایس ایچ او مہار ظفر نے منشیات فروش کو گرفتار کر کے 50 لیٹر شراب برآمد کر لی. تھانہ شاہپور پولیس نے بدنام زمانہ منشیات فروش عبدالوہاب سے 2 کلو سے زائد چرس برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا. خبر شامل کریں جامپور سے. پیپلز پارٹی کے سینئر نائب صدر خواجہ رضوان عالم نے الیکشن کمیشن سے فوری انتخابات کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے. خواجہ رضوان عالم, میر آصف دستی, ملک ریاض حسین, راؤ ساجد علی, مرزا طارق مغل نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی, بے روزگاری سے عوام شدید پریشانی سے دوچار ہے, جس کا حل ماضی کی طرح پیپلز پارٹی کے پاس ہے. انہوں نے کہا کہ معاشی بدحالی میں لوگوں کو اپنے مستقبل کی فکر ہے. سیاسی بے یقینی کی وجہ سے جمہوریت ہچکولے کھا رہی ہے. ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی میثاق جمہوریت پر یقین رکھتی ہے. سیاسی بے یقینی کو ختم کرنے کا واحد حل وقت پر الیکشن کا ہونا ہے. ناظرین آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ڈسٹرکٹ جیل قصور سے پتوں کی پیشی پر آئے خطرناک ملزم کے فرار ہونے کا معاملہ ہے. ملزم رشید عرف شیدی پولیس اہلکاروں کی غفلت کے باعث فرار ہو گیا. رشید عرف رشیدی ڈاکو سنگین مقدمات میں ملوث تھا. تھانہ سٹی میں غفلت کے مرتکب پولیس اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج ہوا. ترجمان قصور پولیس کے مطابق ڈی پی او نے فرار ملزم کی گرفتاری کے لیے اسپیشل ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں. آئی جی پنجاب کے واضح احکامات کے باوجود قصور کی حدود میں پتنگ بازی عروج پر ہے. ویڈیوز میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ آسمان پر رنگ برنگی پتنگیں لہرا رہی ہیں. پتنگ بازی سے پہلے بھی ننھے طالب علم سمیت متعدد افراد زخمی ہو چکے. بعض طالب علم زخمیوں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے ہیں. شہریوں کا کہنا تھا کہ ایس ایچ او اے ڈویژن قصور آصف جاوید کی نااہلی کی وجہ کوئی بڑا سانحہ ہو سکتا ہے. کسی بڑے سانحے کے بعد افسران کی آنکھیں کھل جائیں گی. جب تک کسی بات کا ویویلا نہ ہو افسران کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی. شہریوں نے ڈی پی او قصور, آر پی او شیخوپورہ ریجن بابر سرفراز الپا اور آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا. مزید خبریں بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि कोटला अरब अली खान में तहरीक अज़मत कुरान के ज़ैली दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया गया। बानी तहरीक हकीम मुश्ताक अहमद ने फीता काट कर कुरान मरकज कोटला का इफ्तिताह किया। तहरीक अज़मत कुरान 30 शहरों और सैकड़ों देहात में काम कर रही है। इफ्तिताही तकरीब में कारी इब्रार अहमद, कारी इशफाक अहमद दीगर ने शिरकत की। मुकद्दस औराक को कुरान महफिल कुएं में अदब के साथ दफन किया जाता है। मजीद अहवाल जानते हैं कोटला अरब अली खान से हमारे नुमाइंदे कोहिनूर न्यूज MS बाजवा से। जी बाजवा, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोटला अरब अली खान में, जहाँ पर तहरीक अज़मत कुरान के ज़ैली दफ्तर का इफ्तिताह किया गया है। मेरे साथ तहरीक बानी हकीम मुश्ताक अहमद साहब मौजूद है। इनसे जानते हैं तहरीक के हवाले से इनका क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, तहरीक अज़मत कुरान जो मुआशरे में बेअदबी की जा रही है उसको रोकने में वजूद में आई है। जैसे कि अखबार के ज़रिए, रसाइल के ज़रिए अल्लाह तबारक ताला के नाम की बेअदबी की जाती है, हमारी लापरवाही की वजह से अखबार को कबाड़खाने में बेचा जाता है, रसाइल को पढ़कर भी कबाड़खाने में बेचा जाता है रद्दी के भाव। उसके ज़रिए फिर लिफाफे बनते हैं, फिर दुकानों में, रेडियो पे आते हैं और उसे इस्तेमाल किया जाता है, ज़मीन पर फेंका जाता है। इसी की वजह से आज हमारा माशरा ज़वाल पजीर है। ज़मीन से, कचरे के ढेर से अल्लाह तबारक ताला के नाम उठाने के लिए तहरीक अज़मत कुरान के काफ़िले निकलते हैं और अल्लाह तबारक ताला के नाम को ज़मीन से उठाकर बैग में डालकर कुरान महल में महफूज किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, बाबा की तरबियत से तकरीबन 7 साल से हम कोटला अरब अली खान में अदब के पैगाम काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला के फजल करम से और दोस्तों और ताजरों के तावन से अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें तकरीबन 70 से 75% कामयाब हो चुके हैं। बिल्कुल, इनका कहना है कि तहरीक की वजह से हम मुकद्दस औराक को महफूज करने में बड़ी हद तक कामयाब हुए। जी जी बिल्कुल। बैरून मुमालिक यूनिवर्सिटियों में आला तालीम के हसूल बारे निजी इदारे की जानिब से एजुकेशन एक्सपो का इनेकाद किया गया। एक्सपो में मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी यूनिवर्सिटियों के कंट्री हेड्स और तलबा और तालिबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। बोरेवाला के आर्ट्स के एक निजी इदारे की जानिब से तलबा तालिबात के लिए बैरून मुमालिक आला तालीम के हसूल के लिए आगाही के हवाले से एजुकेशन एक्सपो का इनेकाद हुआ। असिस्टेंट कमिश्नर कोर्ट छुट्टा चौधरी जाहिद इकबाल गुजर की हिदायत पर चीफ ऑफिसर जवादुल हसन गोंदल ने सफाई के लिए मोहल्लावार टीमें बना दी और कमेटी में शिकायत के हवाले से कंट्रोल कायम कर दिया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे नजीर अंजुम अहमदानी। जी, एडमिनिस्ट्रेटर म्युनिसिपल कमेटी को छुट्टा असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी जाहिद इकबाल गुजर की हिदायत पर चीफ ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी जवादुल हसन गोदल ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, जिसमें मोहल्ला काजियां, भुट्टू कॉलोनी, मोहल्ला जलालपुर में जाकर सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया। एवरेज के निज़ाम को बेहतर करने के लिए वेंचिंग मशीनों से साइबर लाइनों की सफाई का भी आगाज कर दिया गया। साइबर मशीनों की सफाई के काम पर चीफ ऑफिसर ने खुद जाकर जायजा लिया। बाद एडमिनिस्ट्रेटर कमिश्नर चौधरी जाहिद इकबाल गुजर सफाई के लिए म्युनिसिपल कमेटी के अफसरान से इजलास किया, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर को छुट्टा मोहल्लावार सफाई की ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर चीफ ऑफिसर जवादुल हसन गोंदल ने कहा कि पूरे शहर के हर वार्ड में सफाई के लिए मुलाजमीन की ड्यूटियां लगा दी गई हैं। लिस्ट को पब्लिक कर दिया गया ताकि आवाम को भी मालूम हो कि उनके इलाकों में किन किन मुलाजमीन की ड्यूटियां लगाई गई हैं। म्युनिसिपल कमेटी में कंट्रोल रूम भी बना दिया गया है, जहां पर सुबह 9 बजे से दिन 2 बजे तक कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। म्युनिसिपल कमेटी की बेहतरीन कारकर्दगी पर असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी जाहिद इकबाल गुजर और चीफ ऑफिसर जवादुल हसन गोंदल की कारकर्दगी को सराहा। कैमरामैन टीम के साथ नजीर अंजुम अहमदानी, कोहनूर न्यूज को छुट्टा। बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का 51वां इजलास चेयरमैन इंजीनियर अकबर खान की ज़ेर सदारत कंपनी ऑफिस में हुआ। इजलास में बोर्ड मेंबरान, नुमाइंदा, लोकल गवर्नमेंट और दीगर ने शिरकत की। इसी पर खुसूसी रिपोर्ट करेंगे फजल जावेद खान। बहावलपुर वेस्ट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का 51वां इजलास चेयरमैन इंजीनियर अकबर खान की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ। बोर्ड मेंबरान, नुमाइंदा, लोकल गवर्नमेंट, असल अमनुद्दीन रशीद, डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू फरूक कमर,
ایاز کلیار ایڈوکیٹ نمائندہ فنانس ڈپارٹمنٹ شعیب احمد CEO کمپنی محمد نعیم اختر سیکرٹری محمد خان کانجو چیف آفیسر آفیسر عمران اشرف منیجر آپریشن محمد امتیاز اللہ منیجر پروکیٹمنٹ عرفان احمد تاج نے اجلاس میں شرکت کی. اجلاس میں متعلقہ طور پر کمپنی کو مستحکم کرنے اور ذرائع آمدنی بڑھانے کے لیے بورڈ ممبران پر مشتمل کمیٹی تشکیل دینے کی منظوری دے گی جو مختلف تجویز مرتب کر کے اپنی شماریات بورڈ آف ڈائریکٹرز کو پیش کرے گی. اجلاس میں فنڈز کے بہتر استعمال کے لیے نئے ماڈل کے لیبر کنیکٹڈ کی بطور پائلٹ پروجیکٹ کی بھی منظوری دی گئی. کیمرہ مین خورم اشتاد کے ساتھ فضل جوید خان، کوہ نور نیوز، بہاولپور. خبر شامل کریں روجھان سے، جہاں کچے کے علاقوں میں مشترکہ گرینڈ آپریشن جاری ہے. آپریشن خفیہ اطلاعات پر جرائم پیشہ عناصر کے ٹھکانوں پر کیا گیا. سرچ آپریشن کے دوران 5 ملزمان کو اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا گیا. اسلحہ نجائز سمیت گرفتار کیا گیا. DPO دوست محمود کا کہنا تھا کہ روجھان اور بنگلہ اچھا کے علاقوں میں پولیس کی ریڈ قائم ہو چکی ہے. DSP جہانیہ اعجاز مسوان کی زیر نگرانی SHO مہر محمد ریاض اور سب انسپیکٹر چوری اسر جٹ کی دبنگ کارروائی منظر عام پر آئی. اندھے قتل، ڈکیتی، راہزنی، چوری کی وارداتوں میں ملوث 5 گینگ کے 11 ملزم گرفتار ہوئے. 1 کروڑ 70 لاکھ روپے کا مال مسروقہ برآمد ہوا، جس میں 38 تولے طلائی زیورات، کار، ٹریکٹر ٹرالی، 4 موٹر سائیکل، 4 موبائل فون اور اسلحہ برآمد کیا گیا. رخ کرے جیکب آباد کا، جہاں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں سماجی شخصیات رانا عابد اور سینئر صحافی رانا محسن کی رہائش گاہ پر محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کیا گیا، جس میں سینکڑوں عاشقان رسول نے شرکت کی. مولانا عباد مدنی اطاری کا کہنا تھا کہ عقائد دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد دونوں جہانوں کے لیے باعث رحمت ہے. وہیں دوسری جانب شیخو پورہ کے شہریوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں معمولی کمی کو یکسر مسترد کر دیا. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو آخری امید قرار دے دیا. اس حوالے سے جانتے ہیں نمائندہ کوہ نور نیوز محمود بیگ سے، جو کہ اس وقت سرگودا روڈ پر پیٹرول پمپ پر موجود ہیں. جی محمود، بتائیے گا کیا کہنا ہے شہریوں کا؟ جی بھیا، یہ بتائیں، آپ یہاں پر پمپ پر کام کر رہے ہیں، حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو کمی کی گئی ہے، اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پیٹرول جو ہے اس کا کاروبار جو ہے وہ تقریباً کم نظر آ رہا ہے. کیا معاملہ ہے ایسا؟ سر سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آج اتوار کا دن ہے، تمام ٹینک بند ہے، تمام ڈپو بند ہے. لوگوں نے کل سے اپنے پمپوں میں جو سٹاک ہوتا ہے، ایوریج سٹاک رکھتے ہیں، وہ ختم کیا. لوگ اس لیے ختم کیا کہ پمپوں والے کے ہمارا نقصان ہے، 30-40 روپے بڑھائیں کم کریں گے. ٹھیک ہے، انہوں نے 30-40 سے کم کرنے سے 7 روپے کم کر دیے. لوگوں سے شباری بنا ہوا، کوئی ذلیل ہو رہا ہے. کوئی دوسرے پمپ پہ جاتا ہے بند ہے جی نہیں پیٹرول ہے، اور تیسرے پمپ پہ جاتا ہے نہیں پیٹرول ہے. کچھ تو اتنی شرم کی بات ہے کہ ہمارے ملک میں ہو کے سب کچھ ہو کے کہ پیٹرول نہیں مل رہا لوگوں کو. اس لیے کہ یہ کہہ رہے تھے ہم 30 روپے کم کریں گے، 30 نہیں کم کیا، 7 روپے کم کر دیے. لوگوں کو سارا زیرو خبر کر رہے ہیں. لہذا اس لیے کہ اس حکومت جو ہے، جو نگران وزیر اعظم ہے، جو بھی اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، اس کو جانا چاہیے، کو آنا چاہیے. اچھا لیڈر تھا، اچھا 150 میں پیٹرول تو ملتا تھا نا. ان لوگوں کو بہت پریشانی تھی ان کی کہ ہمارا پیٹ نہیں بھر رہا، ہمارا جو ایک اندر نہیں گھر چل رہا. لوگوں کا چلتا ہے یا نہ چلتا ہے، ان لوگوں کا نہیں چل رہا. حیدرآباد انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے مین شاہراہ فتح چوک چوہڑ کا منظر پیش کرنے لگی. سڑک پر گٹر کا گندا پانی بھرنے سے بڑے جانی اور مالی نقصان کا خطرہ لاحق ہو گیا ہے. فتح چوک پر مستقل 8 دن سے کئی فٹ گندا پانی جمع ہے. روڈ پر جگہ جگہ گڑے بن گئے ہیں. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں دانش شیخ سے. جی دانش، بتائیے گا کیا صورتحال ہے سڑکوں کی؟ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں فتح چوک پر، جہاں میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں مسلسل 4 سے 5 دن ہو گئے ہیں گندا گٹروں کا پانی جو یہاں پر مسلسل جمع ہو رہا ہے. یہاں پر جو ہے ٹریفک کی مین جو آمد و رفت ہے وہ متاثر ہو گئی ہے. یہاں پر شہریوں کی بڑی تعداد جو کاروباری حضرات ہیں وہ بھی بہت پریشانی کا شکوہ کرتے نظر آ رہے ہیں. ہمارے ساتھ شہری موجود ہے جو ادھر اپنا کاروبار کر رہے ہیں، جو آنے جانے میں جن کو پریشانی ہے. آئیے ان سے میں بات کراتا ہوں، ان کا اس بارے میں کیا کہنا ہے. جی بتائیے گا کہ
जो ये पानी है कितने दिन से और क्या परेशानी है? ये गटरों का नालियों का पानी है, नहरें खाली होती हैं जब भी ये पानी भरा रहता है और नहरें भरी हुई होती हैं जब भी ये पानी भरा ही रहता है। तो इनका कोई सिस्टम का हमारे को तो समझ में आता नहीं है। अब ये बेचारों की दुकानें गरीब गुरबाओं की ठेले खड़े होते हैं, अब इनका कोई काम धंधा कोई हो रहा नहीं है। आने जाने वाले को नमाजियों को भी बेचारों के कपड़े वगैरह खराब हो रहे हैं। तब आपको पानी नजर आ रहा है, ये दरिया का मैदान दिख रहा है, यहाँ पे रोजी बिल्कुल नहीं हो रही और लोगों को आने जाने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। लगी पड़ी है, डूब रहे हैं, बच्चे गिर रहे हैं पानी में, गाड़ियाँ खराब हो रही है यार, ऐसे थोड़ी होता है। कुछ जी आपने शहरी की बात सुनी, इनका यही कहना है कि जो मुसलसल जो है गाड़ियां खराब हो रही है और कारोबार जो है हमारा। रुख करेंगे हैदराबाद का, जहां यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के कॉल पर मटियारी के कलमकार और सिविल सोसाइटी के रहनुमा का शहीद जान मोहम्मद महर के कातिलों की आदम गिरफ्तारी के खिलाफ अलामती भूख हड़ताली कैंप कायम कर दिए गए। मटियारी प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरे भी जारी है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे अली फैजान। आगे बढ़ते हुए इस हवाले से भी जानेंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे सांगढ़ के सिविल अस्पताल में अल-शफा ट्रस्ट आई अस्पताल की जानिब से 3 रोजा फ्री आई कैंप में मौजूद जिसमें 300 अफराद की आंखों के फ्री ऑपरेशन किए जाएंगे। सैकड़ों अफराद को चश्मे और दीगर मेडिसिन फ्री में मुहैया की गई है। ताहाल 30 अफराद की कामयाबी से ऑपरेशन हो चुकी है। मजीद जानते नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज आतिफ अली से। जी आतिफ बताइएगा। में सानर सिविल हॉस्पिटल में 3 रोजा मुफ्त आई कैंप लगाया गया अल शफा ट्रस्ट की जानिब से। यहाँ पर 300 से ज़ायद सर्जरी की जाएंगी, मुफ्त चश्मे दिए जाएंगे और मरीजों को मुफ्त अद्वियात भी दी जाएंगी। अब डॉक्टर साहिबान का कहना है 20 से ज़ायद ऑपरेट हो चुके हैं, अभी मजीद एक और ऑपरेशन का यहाँ पर ऑपरेशन किए जाएंगे। जी मजीद डॉक्टर से मालूमात लेते हैं। ये जो हमारा कैंप वो 3 दिन का कैंप है, आज कल और परसों। इसमें हम और उसमें मरीजों को चश्मे भी देंगे और जिनको जरूरत होगी हम उनको ऑपरेशन करेंगे। नाज़रीन अफसोसनाक खबर आपको बताएं कि सराय आलमगीर में घरेलू नाचाकी पर खावन ने फायरिंग करके बीवी को शदीद जख्मी कर दिया। खातून की शिनाख्त महविश के नाम से हुई है। तशवीशनाक हालत में DHQ अस्पताल जेहलम रेफर कर दिया गया। फायरिंग करने के बाद खावन मौके से फरार हो गया। पुलिस चाय वकुआ पर पहुंच गई। मुलजिम आमिर की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। अपडेट करते चले अफसोसनाक खबर के हवाले से कि सराय आलमगीर में घरेलू नाचाकी पर खावन ने फायरिंग करके बीवी को शदीद जख्मी कर दिया। खातून की शिनाख्त महविश के नाम से हुई। तशवीशनाक हालत में DHQ अस्पताल जेहलम रेफर कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट कैप्टन रिटायर्ड शाह मीर ने कहा कि 2 अक्टूबर से जिला सियालकोट में 5 रोजा कौमी सदाद पोलियो मुहिम का आगाज होगा। मुहिम के दौरान 5 साल से कम उम्र 7,72,711 बच्चों को पोलियो से बचाव के हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे। कौमी सदाद पोलियो मुहिम के सिलसिले में इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि 5 रोजा कौमी सदाद पोलियो मुहिम 6 अक्टूबर तक जारी रहेगी। ऑल सिंध पीपल्स पैरामेडिकल स्टाफ कराची डिवीजन के ज़ेरे एहतमाम चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी की 35वीं सालगिरह की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में केक भी काटा गया। अहदेदारों और कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इसी पर रिपोर्ट करेंगे मुश्तबा मक्सी। बिलावल भुट्टो साहब की 35वीं सालगिरह थी। आज जो ऑल सिंध पीपल्स पैरामेडिकल की रवायत रही है, हमें अपने कायदीन की सालगिरह मनाते रहते हैं। जो भी इवेंट होते हैं वो मनाते हैं। जो पहले शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब की हो या शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो साहब की, वो भी सालगिरह इवेंट जितने भी होते हैं हमारे ऑल सिंध पीपल्स पैरामेडिकल पूरे सिंध में मनाते हैं। बिलावल साहब की सालगिरह ये पहली बार जो हमारे सिंध की क़यादत ने जो ऐलान किया वो इवेंट पूरे सिंध में कर रहे हैं हमारे। और आज सिविल हॉस्पिटल कराची में ये हमारे सिविल हॉस्पिटल यूनियन की तरफ से जो 35वीं सालगिरह की थी और इंशाअल्लाह ताला आगे भी सालगिरह करते रहेंगे। पूरी सिंध में चल रही है और कराची डिवीजन में भी हर हॉस्पिटल में जो सालगिरह का प्रोग्राम करते रहेंगे। चेयरमैन साहब हमेशा हमारे वो दिलों में याद है और हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आवाम की खिदमत की है। रोटी कपड़े मकान का जो नारा लगाया है वो सभी वायदे पूरे हैं और कर रहे हैं। अभी भी जो सैलाब में
वो घर लोगों को चले गए, वो चेयरमैन साहब ने दिए या उनको फंड दिए, सारे घर बनवा के दिए। और पूरी इलेक्शन पाकिस्तान में जब भी इलेक्शन होगी इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी स्वीप करेगी और अगला वजीर आजम भी इंशाल्लाह चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ही होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी भुट्टो, जी शहीद रानी मोहतरमा बेगम भुट्टो, आज हमने अपने कायद बिलावल भुट्टो साहब की जो सालगिरह मनाई है, हमें बहुत खुशी हुई है और हम ये हर साल इसी तरीके से मनाते आ रहे हैं। तकरीबन 35 साल से हम इस मुसलसल जो है अपने कायद की जो है सालगिरह मनाते आए हैं और अपनी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की भी सालगिरह इसी तरीके से मनाते हैं और आज हमें बहुत खुशी है। हम अपने कायद वहीं दूसरी जानिब बहावल नगर में भी इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर जुल्फिकार अहमद भून ने लारी अड्डा के करीब खाना बदोश बस्ती में बच्चों को कतरे पिलाए। इस मौका पर DHO डॉक्टर खालिद, महकमा सेहत के दीगर अफसरान और WHO के नुमाइंदा भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर जुल्फिकार अहमद भून ने कहा कि वालिदैन पोलियो के खात्मे की कोशिशों में हुकूमत का साथ दें। करोड़ला लीसन में आशूबे चश्म की वबा फूट पड़ी है। आंख के इन्फेक्शन के मरीजों में मुसलसल इजाफा होने लगा। MS के मुताबिक तहसील अस्पताल करोड़ में रोजाना 50 से ज्यादा मरीज चेकअप के लिए आ रहे हैं। मौसम की तब्दीली और फजा में आलूदगी की वजह से ये अमराज फैल रहा है। मर्ज के दौरान आंखों को वॉश करें और डॉक्टर से रुजू करें। जश्न विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से हैदराबाद में परफेक्ट ड्रीम सिटी फेज 2 का शानदार इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिदाई तकरीब ड्रीम सिटी के हेड ऑफिस में मुनक्किद की गई। इस मौका पर अजीम शान महफिल मिलाद का इनेकाद भी किया गया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे दानिश शेख। पिछले दिन जश्न ईद मिलादुन नबी के पुरमसरत मौके पर परफेक्ट ड्रीम सिटी फेज 2 का शानदार इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताई तकरीब परफेक्ट ड्रीम सिटी फेज 2 के हेड ऑफिस में मुनक्किद की गई। इस मौके पर हाफिज आजम खान जहांगीरी, हाजन शाह, सलीम सिंधी ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। तकरीब का आगाज तिलावत कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। तकरीब में मारूफ उलमा कराम ने अपने पुरनूर बयान से शुरका के दिलों को मुनव्वर फरमाया, जबकि तकरीब में आने वाले मोअज़्ज़िज़ मेहमानों ने परफेक्ट ड्रीम सिटी फेज 2 के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया। तकरीब के इख्तिताम पर परफेक्ट एसोसिएट्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के डायरेक्टर्स की जानिब से मेहमानों को सिंध की रिवायती अजरक भी पेश की। इस मौके पर परफेक्ट एसोसिएट्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के डायरेक्टर्स अहमद नवाज मक्सी, रफीक बलोच, इनायत अली सम्मो, मजर रफी मेमन, मारूफ समाजी रहनुमा मसरूर भट्ट, चेयरमैन आसिफ कायम खानी समेत रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कश्मीर में सानिया मस्तूम के खिलाफ सुन्नी तहरीक के ज़ेरे एहतमाम एहतजाजी मुजाहरा किया गया। कादरी मस्जिद से डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन का कहना था कि सानिया मस्तूम पर दिल खून के आंसू रो रहा है। आका के मिलाद के जुलूस पर हमला किया गया है। हमला आवर के सहूलतकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, वरना मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक का आगाज किया जाएगा। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस में सिक्योरिटी के कोई बेहतर इंतजाम नहीं किए गए। सानिया निश्तर पार्क के मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जाता तो आज ये सानिया पेश न आता। शाहपुर में खाद माफिया मुतहरिक हो चुकी है। किसानों की फसलें तबाह होने का अंदेशा है। खाद शहर के अंदरून में घर नुमा स्टोरों पर स्टॉक कर दी गई है। खाद ब्लैक में फरोख्त होने का बड़ा इंकशाफ हुआ है। किसान बरादरी सरापा एहतजाज बन गए, मगर इंतजामिया की जानिब से माफिया को नकेल डालने वाले दावे धरे के धरे रह गए हैं। तहसील कुंडरी में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोर गैंग को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान में गुलजमान, आसिफ खासखेली और मोहम्मद मीर कपरी शामिल हैं। कब्जे से 4 मोटरसाइकिल, असलहा और मास्टर चाबी बरामद हुई। गिरफ्तार मुल्जिमान पहले भी पुलिस को मुकदमात में मतलूब थे।
खबर शामिल करें जलालपुर पीरवाला से, जहां मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से सैलाब मुतासरा 150 घरों में खुश्क राशन तकसीम किया गया। मरकजी मुस्लिम लीग का मंशूर मुतासरा इलाकों में सैलाब मुतासरीन की इमदाद करना है। मरकजी मुस्लिम लीग के रहनुमा चौधरी मोहम्मद अब्बास का कहना था कि इमदाद का सिलसिला इसी तरह यूं ही जारी रहेगा जब तक सैलाब मुतासरीन अपने घरों में सुकून से जिंदगी बसर नहीं करते। इंशाअल्लाह सैलाब मुतासरीन की मदद उसी तरह करते रहेंगे। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग खिदमत की सियासत का जज्बा रखती है। नाज़रीन, खबर यह है कि मुल्क की कारोबारी और समाजी शख्सियत खलीफा बिलाल शरीफ, चेयरमैन नूर नजफ ग्रुप ऑफ कंपनी, खलीफा यूसुफ शरीफ और खलीफा अवैस शरीफ ने मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल के ज़ेरे इंतजाम मीनार पाकिस्तान होने वाले आलमी मिलाद कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आने वाले मिस्र के मेहमानों के एहसास में ग्रैंड अशाइये का एहतमाम किया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे सलमान शाह। मुल्क की कारोबारी व समाजी शख्सियत खलीफा बिलाल शरीफ, चेयरमैन नूर नजफ ग्रुप ऑफ कंपनी, CEO खलीफा यूसुफ शरीफ और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खलीफा अवैस शरीफ ने मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल के जेर इंतजाम मीनार पाकिस्तान में होने वाली आलमी मिलाद कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आने वाले मिस्र के अजीम शयूख प्रोफेसर डॉक्टर उसामा मोहम्मद हसन अल अबद, साबिक चांसलर अल अजहर यूनिवर्सिटी व मेंबर पार्लियामेंट मिस्र और प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद नसर अल सयूकी अल अबान, उस्तादुल हदीस व उलूम अल अजहर यूनिवर्सिटी के एजाज में ग्रैंड इशाया दिया। इशाइया में गैर मुल्की मेहमानों के अलावा मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल की मरकजी क़यादत ब्रिगेडियर रिटायर खुर्रम नवाज गंडापुर, नाज़िम आला, नूरुल्लाह सिद्दीकी नायब नाज़िम आला मीडिया अफेयर्स, अब्दुल रहमान डायरेक्टर फाइनेंस, गुलाम मुस्तफा मलिक डायरेक्टर फॉरेन अफेयर्स, एनुल हक बगदादी नाज़िम शोबा इम्तिहानात निज़ामुल मुदारिस पाकिस्तान, खुर्रम शहजाद डिप्टी डायरेक्टर फॉरेन अफेयर्स, क्राइम इंचार्ज सेल रॉयल न्यूज खलीफा अकील अहमद चांद रॉयल न्यूज और इंजीनियर मियां। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन, खबर ये है कि वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन हसन नकवी की हिदायत के मुताबिक IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर मियांवाली पहुंचकर PHP चेक पोस्ट का दौरा किया। IG पंजाब ने दहशतगर्दों को मारने वाले पुलिस के जवानों को शाबाश दी। कहा कि शहरियों के जानो माल, इज्जत और हर तरह के चैलेंजेस से निपटने के लिए पंजाब पुलिस हमा वक्त तैयार है। इससे मजीद IG पंजाब ने जवानों से क्या गुफ्तगू की, तफसीलात जानते हैं अपने चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से आपके पास? देखिए, ये IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर मियांवाली पहुंच गए हैं। वजीर आला पंजाब की हदायत के मुताबिक जो है वो डॉक्टर उस्मान अनवर को पुलिस अफसरान के हमरा जो है वो मियांवाली जाना पड़ा और इसी पर जो है वो PHP जो है वो चेक पोस्ट कुंडल का दौरा भी किया है। इस मौका पर IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के हमरा एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच जुल्फकार हमीद, एडिशनल IG CTD वसीम सियाल, जबकि एडिशनल IG PHP राव अब्दुल करीम, DIG PHP अतर वहीद, जबकि DIG IT एहसन यूनुस समेत जो है वो DPO मियांवाली समेत सीनियर पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। IG पंजाब के हवाले से मैं बताता चलूं कि IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की दहशतगर्दों के हमलों को नाकाम बनाने वाले पेट्रोलिंग पुलिस पोस्ट पर तैनात बहादुर जवानों से मुलाकात हुई है। तो DIG पेट्रोलिंग पुलिस अतर वहीद और मोर्चे पर तैनात जवानों ने IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर को गुज़श्ता रात दहशतगर्दों के हमले की तफसीलात से जो है वो आगाह भी किया, जबकि IG पंजाब ने पेट्रोलिंग पोस्ट मोर्चे पर तैनात रईस, इम्तियाज और शाहजहां समेत 4 जवानों को दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर नकद इनाम से भी नवाजा और शाबाश भी दी गई है। इस मौका पर एडिशनल IG पेट्रोलिंग राव अब्दुल करीम, एडिशनल IG CTD वसीम सियाल ने DPO मियांवाली ने जो है वो IG पंजाब को हमलावर जो है वो दहशतगर्दों के खिलाफ सर्च एंड स्वीप ऑपरेशन की तफसीलात से भी आगाह किया था।
जबकि आईजी पंजाब का ये भी कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और आर्मेड फोर्सेस के साथ मिलकर दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करके सफाया भी करेंगे। जबकि आईजी पंजाब ने ऑपरेशन करने वाले सीटीडी जवानों को 5 लाख, जबकि चेक पोस्ट पर तैनात तमाम जवानों को 30 लाख रुपए नकद इनाम दिया। कुंडल चेक पोस्ट की बात की जाए तो कुंडल चेक पोस्ट का जो है वो नाम शहीद कांस्टेबल हारून खान के नाम पर जो है वो रखा जाएगा। आईजी पंजाब का कहना था कि बॉर्डर एरिया की पेट्रोलिंग पुलिस पोस्टों को मजीद मजबूत और सहूलत से आरास्ता करेंगे और इसी पर पंजाब पुलिस के जवानों का मोराल बेहद बुलंद है। दहशतगर्दी की बुजदिलाना हमले हमारा मोराल पस्त नहीं कर सकती। आईजी पंजाब ने आखिर में जो है वो पेट्रोलिंग पोस्ट जो है वो कुंडल के न डर नौजवानों का हौसला बढ़ाया और अल्लाह अकबर पे नारे भी लगाए। आईजी पंजाब का कहना था कि पंजाब के जो रिहायशी हैं, जो पंजाब के रहने वाले हैं, वो बेफिक्र होकर अपने घरों में रहें और मोर्चे संभालने के लिए पंजाब पुलिस मौजूद है। किसी भी जो है वो दहशतगर्द को जो है वो कहीं लाहौर में या दीगर ऐसी कोई जगह पर दाखिल होने की इजाजत हरगिज न दी जाएगी। बाकायदा लाहौर की तरफ आने और जाने वाले तमाम रास्तों को भी जो है वो सिक्योरिटी के लिए हाई अलर्ट कर दिया गया है। जिस तरह से आज इतवार का दिन था, तो जैसे ही दहशतगर्दों ने बुजदिलाना हमला किया था कुंडल में, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए जो है वो इतवार के रोज भी जो है वो जिस तरह से लोग इबादत के लिए जाते हैं मुख्तलिफ मसाजिद में या जो है वो इमाम बारगाह में, तो वहां पर भी पुलिस की एक बड़ी हाई सिक्योरिटी अलर्ट कर रखी थी। आईजी पंजाब का कहना था कि दुश्मन का डटकर मुकाबला करना हमें बखूबी आता है। जी ठीक है, आईजी पंजाब ने कहा कि दुश्मन का डटकर मुकाबला किया जाएगा। वसीम साबिर चीफ क्राइम रिपोर्टर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि एसपी इकबाल टाउन उस्मान टीपो के हुक्म पर एसएचओ सांदा मलिक तैमूर और उनकी टीम की बर वक्त कार्रवाई हुई। सांदा में होने वाली डकैती का 24 घंटे में ड्रॉप सीन हो गया। मुलजिमान गिरफ्तार हो चुके। 9 लाख की रकम शहरी के सपोर्ट कर दी। एसपी इकबाल टाउन मोहम्मद उस्मान टीपू ने वसीम साबिर चीफ क्राइम रिपोर्टर से गुफ्तगू करते हुए बताया कि मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी है। एसपी इकबाल टाउन ने बताया कि सांदा पुलिस को 15 पर डकैती की इत्तला मिली थी और रिक्शा ड्राइवर रिकवरी के लिए 9 लाख रुपए लेकर जा रहा था। खबर ये है कि यूईटी लाहौर में चौथे यूएस यूनिवर्सिटी फेयर का इनेकाद किया गया। तकरीब में अमरीकी यूनिवर्सिटियों के नुमाइंदों ने 250,000 तलबा के साथ बराह रास्त बातचीत की। ल्यूक्लिन ने अल्बेनिसनी, सैकी मोंटोकमरी ने ड्रेसल यूनिवर्सिटी, मॉडिसन फरेरी ने यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू हेम्सफेयर, जय लिक्विन ने लुसियाना टेक्निकल यूनिवर्सिटी, बैन बलीका ने सेंट क्लाउड स्टेट यूनिवर्सिटी, इसके अलावा अदील अहमद ने यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो और अनम इकबाल ने साउथर्न मैथ्यूडस यूनिवर्सिटी से यूईटी लाहौर का दौरा किया। यूईटी लाहौर के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर हबीबुर रहमान ने यूईटी में मुसलसल चौथे साल यूएस यूनिवर्सिटी फेयर का एहतमाम करने पर पाकिस्तान में यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशन फाउंडेशन का बेहद शुक्रिया अदा किया। उन्होंने इस बात को सराहा कि इस तरह की कोशिशें तलबा को न सिर्फ बराह रास्त यूनिवर्सिटी के नुमाइंदों से जोड़ती हैं, बल्कि यूनिवर्सिटी के नुमाइंदों से बराह रास्त तालीमी प्रोग्राम्स, स्कॉलरशिप्स, दाखिले के तरीकाकार और कैंपस लाइफ के बारे में जानने में भी मदद फ्राहम करती हैं। ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर अली हसन कासिम ने एतराफ किया कि ऐसे मौके के साथ यूईटी अपने तलबा की बैनुल-अक़वामी तालीम के हसूल में फाल तौर पर मदद कर रहा है। पुरजोश टर्न आउट और तलबा और यूनिवर्सिटी के नुमाइंदों के दरमियान पुरजोश बातचीत ने यूईटी में यूएस यूनिवर्सिटी फेयर को शानदार कामयाबी से हमकनार किया। पीएचई इंतजामिया की मुबैना मिली भगत से ग्रीन बेल्ट्स में तजावुजात माफिया का राज बरकरार है। लाहौर की खूबसूरती में इजाफा करने वाली ग्रीन बेल्ट्स कुर्सियां, मेज, रेडियां और फास्ट फूड के काउंटर नजर आते हैं। रेडियां हर जगह है। तजावुजात कायम होने से ग्रीन बेल्ट्स तबाह हो गई है। पीएचई हर साल करोड़ों रुपए ग्रीन बेल्ट्स को खूबसूरत बनाने के लिए खर्च करता है, लेकिन मुतल्लिका जोन इंतजामिया की मुबैना मिली भगत से ग्रीन बेल्ट्स बदहाली का शिकार हैं। पीएचई की जानिब से तजावुजात माफिया के खिलाफ ऑपरेशन अमल में लाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद ग्रीन बेल्ट से तजावुजात का मुकम्मल खात्मा नहीं हो सका।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि एसपी इकबाल टाउन उस्मान टीपू के हुक्म पर एसएचओ सांदा मलिक तैमूर और उनकी टीम की बरवक्त कार्रवाई हुई। सांदा में होने वाली डकैती का 24 घंटों में ड्रॉप सीन, मुलजिमान गिरफ्तार, 9 लाख की रकम शहरी के स्पोर्ट कर दी। एसपी इकबाल टाउन मोहम्मद उस्मान टीपू ने वसीम साबर चीफ क्राइम रिपोर्टर से गुफ्तगू करते हुए बताया कि मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दी थी। एसपी इकबाल टाउन ने बताया कि सांदा पुलिस को 15 पर डकैती की इत्तला मिली थी और रिक्शा ड्राइवर रिकवरी के 9 लाख रुपए लेकर जा रहा था। 2 मुलजिमान ने गन पॉइंट पर रिक्शा ड्राइवर से 9 लाख रुपए छीन लिए थे। मुलजिमान को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार किया गया। रिक्शा ड्राइवर कासिम ने अपने दोस्तों अनीस और तलहा के साथ मिलकर डकैती का ड्रामा रचाया। अनीस और तलहा के साथ मिलकर डकैती का ड्रामा रचाया गया और इसी के साथ ही एसपी इकबाल टाउन मोहम्मद उस्मान टीपू ने रिकवर होने वाले 9 लाख रुपए शहरी के सुपुर्द कर दिए। दूसरी जानिब शहरी ने रकम मिलने पर लाहौर पुलिस का बेहद शुक्रिया अदा किया। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए KN न्यूज।